Okay, no more waiting. Just let's start the today's lecture. So let me introduce myself. I'm Ravindra Dave. You can call me Ravi, and I'm here to give you the overview of US taxation. We will working on US. We will start in upcoming months. We will learn about the US taxation. Okay. And I have more than 5 years of experience in the US industry. I am Andrew Legend, currently working in US taxation. I have experience of all the forms 1040, 1120, 1120S, and 1065. Uh, Guys, please introduce yourself with a small introduction, your name, where are you from, and currently what are you doing, one by one, starting with Dharmesh. Dharmesh, am I audible? Hello? Hello. Hello? Yes, sir. Uh, you can introduce yourself. Sir, my name is Dharmesh. I belong to Ahmedabad. I have post graduation in Gujarat University. Okay, so you are fresher. Okay, Yes, sir. so you are fresher, right? Yes, sir. And Harmit, Hello, sir. My name is Amit. I'm from hello. Nowadays I'm from Gujarat University. Currently, I'm also pursuing CPA. Hello. Harmit, your voice is not coming. Hello. 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 Yes, Harmit. Hello, sir. My name is Amit. I've done MCOM from Gujarat University. Currently, I'm pursuing CPA also. Okay, okay. Priyansh, Priyansh, are you there? Hello, am I audible? Priyansh, are you there? Dharmesh, am I audible? Yes, sir. Okay, so the Priyansh is not there. Bhumika, are you there? Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Bhumika and I'm from Udaipur. Currently, I'm living here in Ahmedabad and working with a CPA firm as an associate. So that's all about me. Thank you. Okay, so since how many months we are working with CPF? It's been around 7 months, I guess. Okay, so you have idea about US taxes, right? Yes, Okay, a bit, not that much. okay. You will get a more idea in this lecture. Thank you. Okay, Krishna. Hello, sir. Hello, everyone. Good morning. So I'm Krishna Nikhil. I'm from Ahmedabad. I have done with my graduation and I'm pursuing EA USA. Already clear my part one and part two, appearing for part three in December. I have worked almost 1 year and 5 months with sole proprietor who is a EA and CPA and currently looking forward for to join new CPA firm soon. So that's all about me. Okay, thank you, Krishna. Thank you, Bhumika. Thank you, Priyanka. Are you there?
might be is not on a desk. Let's start the today's lecture. No more waiting. Okay. So let me share my screen. Please let me know if it is visible or not. Guys, my screen is visible. Yes. Yes. Okay. So guys, let's start today's section with the overview of US taxation. I heard your introduction and I got to know that only couple of participants are working in the industry. Otherwise, rest are the freshers. So start from the scratch. Okay. So before starting the US taxation, how many of you know about the IRS? Can anyone tell me? Yes, IRS is like Internal Revenue Service. Like in India, we have a ICAI, governing body of a CA. So in US, there is a IRS, like same as the income tax in India. Yes, right. A tax body. Can yes. Can anyone wants to join? So in the term, the IRS, in short, IRS are my boss. Okay, we have to deal with the IRS. Though in India we have income tax department who is currently handling all tax matters, right? So in US, the IRS, Internal Revenue Service, is the federal government agency and responsible for collecting taxes and enforcing tax laws in United States. Okay. Whenever any entity or any taxpayer file a tax return, he or she has to he has to send their tax returns to the IRS. Okay, and IRS examine those tax returns, and then if they find any discrepancy or any kind of discrepancy or default he find, he can send a notice and tax return will be under the audit. Okay, so the IRS is the part of his federal government. I can say this is mm, he is responsible for collecting taxes. Okay, calculating taxes, collecting taxes, and enforcement of laws. Okay. So basically, in India, we have only one level of taxes, right? Whenever we file the income tax in India, we file only central level taxes, right? Only one taxes. If I am a salaried person, I am filing ITR one. Okay, only one time, only one agency will take care of this, right? But in US, there are three level of taxes. Federal Sir, taxes. Yep. hello. Yes. Yes. Sir, can you please speak loudly? Your voice is lagging. Okay. Let We me speak. cannot hear properly. Okay. 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 Is it okay now? Yes. Okay. So so am I start again or from the here? No, no, you can continue. Okay. So US there are three levels of taxes, right? Taxpayer have to file a three level of taxes whenever it is required, right? First is the federal taxes are taken care by the IRS. There are also state taxes and local taxes as well. In our study, we are currently focused on federal taxes because US have 50 states and every states have a different rules, right? But all over in US, federal taxes are the same, applicable to the all part of US. On the type of taxes we can talk about, there is a federal income tax, there is a state and local income tax, there is payroll taxes, which is applicable on wages and whatever type of income we receive. There is a corporate tax, it applicable to the corporates, especially C Corp, not S Corp and 1065, which we will see in detail.
in upcoming lectures. There is a capital gain, there is a estate and gift tax. Whenever a person gives a gift tax above the threshold limit, he have to pay the taxes and file this gift tax return as well. Okay, so there is a difference between federal and state taxation, though federal taxes apply nationwide. Okay, and state taxes, as I'm talking about that, there is a 50 states in US, right? And every state have a different rules. Okay. Uh, Federal never interfere in state tax rules, and state taxes are never interfere in federal taxes rules, right? Every person have to pay taxes on in federal and state as well. Some of income may be taxable in federal and not taxable in state, and some of income are exempt from tax in federal and they have to pay taxes on state. So the states and federal tax are the difference. Okay, and there are 9 states are tax haven states in US, like Texas, Florida, Nevada. They are exempt from the income tax only. Okay, and the state taxes are applicable on the states only. There are several tax firms in US. 1040, 1040 is like ITR1, right? We have India, we have ITR1. In US, there is a 1040 form for individual taxation, right? If we are a senior citizen, then you have to file 1040 SR. If you are a non-resident individual, then you have to file 1040 NR, right? But the 1040 is for individual person who are receiving the income in US. You have to pay the taxes on US and you have to report your income expenses deduction on 1040 form. All right. 1120 is for corporation and 1065 is for partnership. I just want to give you a small brief about the 1065 and 1120, right? So the 1065 is a partnership form, right? In India, we also have a partnership form. US is the same concept of partnership form. The tax form is 1065. And there is a corporation. There are two type of corporation. There is a S corporation and there is a C corporation. Right. The basic difference is S corporation and C corporation is that both are the S corporation is a small corporation, right? They have a small so they have a limited shareholder, and S corp is like public limited in India, right? And C Corp is a private limited in India. There is a small corporation, there is a big corporation, right? So 1120S and 1065 both are the pass-through entities. They are not paying their taxes on entity level. They transfer their taxes through K1 to the individual, and individual pay taxes on that. And C Corp are the entities who pay taxes on their entity level. This is the due dates, guys. Uh, please be cautious, right? uh 1040 in the due date, they are generally using calendar year, right? They start from the January and complete from 30th December generally. In individual, there is a calendar year. In business, they can use a fiscal year. Like in India have a 1st of April to 31st of March, right? Then US, there people also can use a fiscal year, but generally they are using a calendar year. If it is completed in completed your year in December, then the due date is 15th of April for individual. For the corporates, 1120, which is a 15th April, 1065, and 1120S, which is the 15th of March, and you will get a 6 month of automatic extension of 6 months. You have to file 4868 if you are individual taxpayer for the extension. So if individual is filing his form on 15 April and he file 4868, then you will get a 6 months, exact 6 months extension. Then it will be a 15th of October. 15th of October for only the filing of taxes and not paying the taxes. Okay. You have to pay your tax before the deadline, and you can file your tax return after 6 months. So this is the extension rule for individual and business taxes as well. This is the tax bracket and tax rate. In currently in 2024, it is a 10 to 37% for individual taxes, right? And the US taxation is a progressive taxation, right?
If you earn more, you have to pay taxes more. You are earn less, your taxes are lower. Right. This is the corporate taxation for C Corp only. As I said, S Corp and 1065 are the pass-through entities. Only C Corp are paying taxes flat 21% in federal. States have a different rule. Alright, so this is the overview. Anyone have any question? Am I going very fast? Please let me know. And is there any issue you have? Please make a note. And if you have any doubt, please raise your hand and we will discuss it. Anyone have a doubt till here? Hello? Is everyone have a doubt? Please say yes or no. No, sir. Okay, thank you. So guys, I just want to give you the brief about the US taxes, and so this is the format of 1040 tax return. Okay. Currently we are focusing on 1040 tax return for the individual. So this is the format, right? We have a gross income. Gross income, like every type of income will be taxable on tax return, right? Like wages, rent, capital gain, business income. We will see in details in upcoming lectures, right? This is the adjustment. This adjustment is called above the line deduction because it is appear before the AGI. It helps to come with the AGI. After deducting the adjustment, we receive adjusted gross income, right? And from the adjusted gross income, we deducted the standard deduction or itemized deduction, whichever is higher. So standard deduction is like fixed deduction, right? Which change every year as the inflation rate higher. So every year the limit of standard deduction changes, and itemized deduction is like a la carte. Okay, uh, you can take uh, you can take a deduction one by one and combine and see which deduction is higher. Then you minus the deduction, and this deduction is called a below the line deduction because it is comes after the AGI. Okay, we will see in detail whenever in upcoming lectures what is itemized deduction, what is standard deduction, and after deducting the standard deduction, there is a we will receive a taxable income before QBI. This is a QBID deduction, qualifying business income deduction. This is also a very big topic, right? I just want to summarize something. The QBI deduction is introduced after Trump become a president in 2018, right? Trump come up with a TCJ Act, which creates a very big reforms in US taxation, right? In before TCJ, taxpayer pays the taxes, a tax bracket we saw, there is a 10 to 37%, right? Hello, And sir. Your yep. audio mic is very slow. Your voice is lacking actually. That's why I ask if is there any issue. Mic is very slow. Can you speak loudly because we cannot proper hear you. Okay. Is it okay now? Or is it still very low? Hello? Hello. Is it okay now? Yes. Is it okay? Is it okay? Okay. थोड़े So, थोड़े टाइम तक अच्छा चलेगा, उसके बाद 5-10 मिनट के बाद एकदम टोटली वॉइस स्लो हो जाता है एंड लैग होने uh, लगता है, सो कैन okay, नॉट हियर प्रॉपरली. okay. So till here you are okay, or I just start from the format again. Okay, sir. Hello, sir. Yep. We can so explain to Hindi, sir. Yeah, sure.
ओके आप सर। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि सबको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम हाँ हिंदी में सर, भी बात कर प्रॉब्लम सकते हैं। नहीं है, पर क्या है, थोड़ा हिंदी में अच्छी तरह समझ आता है, इसलिए। ओके ओके, कोई बात मतलब नहीं, क्या हिंदी में कुछ बात। कंसेप्ट ऐसा होता है जो हिंदी में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, हाँ दैट्स ये व्हाई। राइट 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 राइट। अकाउंट में ओके, नो मेरी वरीज, नो। मैम हिंदी में पढ़ाती तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश आता है सर, पर क्या वो ओके अंडरस्टैंडिंग हिंदी में अच्छा रहता है। ओके, कोई बात नहीं, तो हिंदी में बात करते हैं। ओके नो सर। वरीज। ओके ओके। सर आपका माइक का जो वॉइस है ना वो थोड़ा मतलब लाउडली कर दो, बढ़ा दो, अभी फिर से कम हो गया है। वो कम हो पहले आता जाता है है, फिर चला जाता है, बहुत कम हो जाता है। आप किसी और को भी पूछ लो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे है को ही ना, होता है। कम ही आता है सर। हाँ बहुत कम आता है। हम्म। एक्चुअली क्या Yes, है, sir. मेरा वॉइस तो वैसे एकदम फास्ट ही है। हाँ बस अब Let- आया। अब आया ना? हाँ अब ओके आया, अब ज्यादा आया। ओके 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 मच बेटर फॉर बिफोर। यस 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 यस। ओके ओके ओके। बिकॉज मैं तो पूरा हिंदी से, कान के पास लगा के बैठा हूँ फिर भी मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। ओके ओके, अभी आ रहा है? इज इट ओके? यस सर, अब क्लियर आ रहा है। ओके, तो वापिस से स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। ओके, आगे तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे जो दिया वो ओके था, उसमें किसी को डाउट है? ना सर, पर उसके साथ पीडीएफ मिल जाएगी। श्योर मिल जाएगी, ओके सर, डन। है ना? ओके। तो वो सिर्फ ओवरव्यू था जो मैंने ओवरव्यू दिया, ठीक है। हम 10:40 पे स्टार्ट करते हैं, राइट? तो ये जो है, आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है ना? यस यू सर। कैन सी माई स्क्रीन, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेट, राइट? यह है ग्रॉस इनकम है सबसे पहले, तो सभी टाइप की इनकम जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी, राइट? वी विल सी इन डिटेल इन 1040 पेजेस। दिस इज द फॉर्मेट जस्ट आपके लिए है, ठीक है? आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये ग्रॉस इनकम है, उसमें से एडजस्टमेंट माइनस होगा, ठीक है? ये जो एडजस्टमेंट जो है, जो अबाउ द लाइन डिडक्शन बोलते हैं उसको, राइट? वो अबाउ द लाइन डिडक्शन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज कम बिफोर द एजीआई, राइट? वो एजीआई को लाने में मदद कर रहे हैं, इसलिए ये अबाउ द लाइन डिडक्शन है। अबाउ द लाइन डिडक्शन माइनस करने के बाद हमें एजीआई मिलेगी, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, ठीक है? उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटम डिडक्शन माइनस करेंगे, राइट? और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है कि फिक्स अमाउंट है। इंडिया में भी वी हैव स्टैंडर्ड डिडक्शन इन टैक्स रिटर्न, राइट? 50,000, 75,000, राइट? यूएस में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो एवरी ईयर इन्फ्लेशन के रेट के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है? और आइटमाइज डिडक्शन क्या है? इट्स लाइक आ ला कार्ड, राइट? यू कैन चूज, ठीक है? आइटमाइज डिडक्शन में 5-7 तरह के डिडक्शन होते हैं, इनका टोटल मिला के एक आइटमाइज डिडक्शन मिलता है, ठीक है? तो इन दोनों में से जो हायर होगा वो ले लेगा। यूएस में एक अच्छी बात क्या है पता है? कि दे आर टेक्नो सेवी, राइट? वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, राइट? टैक्स सॉफ्टवेयर अपने आप से ही कैलकुलेट करता है, राइट? हमें सिर्फ डेटा प्रिसाइजली एंटर करना है, हमें जो चाहिए वो चीज़ अच्छे से डालनी पड़ती है, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो हमें देखना है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटम डिडक्शन में से जो भी आयर होगा वो जो टैक्स सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है? अगर और स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटम डिडक्शन माइनस करेंगे, उसमें से जो मिलेगा वो है टैक्सेबल इनकम, राइट? टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई। जैसे मैंने बात किया कि क्यूबीआई डिडक्शन जो है वो टीसीजे से पहले नहीं था। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो उसने टीसीजे एक्ट लागू किया, वो 2018 से 2025 तक था, ठीक है? अब 26 से वापिस से उसने नया बिल रेज किया है, उसमें काफी सारी लिमिट चेंज हो गई, राइट? ये सीखने के बाद हम एक अमेंडमेंट लेक्चर रखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है? तो ये क्यूबीआई डिडक्शन वो लेके आया है, ठीक है? ट्रम्प लेके आया। क्यूबीआई डिडक्शन क्यों आया? क्यूबीआई डिडक्शन आने के पीछे एक छोटी सी बात यह है कि क्यूबीआई डिडक्शन जो है, जो टैक्स पेयर्स जो है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर, वो टैक्स पे करते हैं अप टू 40% टैक्सेस, राइट? और जो कॉर्पोरेट्स है दे आर पेइंग 21% टैक्सेस। तो 20 का जो गैप है, तो इंडिविजुअल बोले भी हम टैक्सेस क्यों पे करें? अगर कॉर्पोरेट अपने लेवल पर टैक्स पे कर देता तो 21% ही पे करता, तो हम यहाँ पे 40% क्यों पे करें, ठीक है? तो टू कंपनसेट द इंडिविजुअल दे कम अप विद क्यूबीआई डिडक्शन, राइट? तो क्यूबीआई डिडक्शन माइनस करने के बाद हमें टैक्सेबल इनकम मिलेगा, ठीक है? दिस इज द टैक्सेबल इनकम। और ये सर व्हाट इज टैक्सेबल इनकम पे, क्यूबीआई? सॉरी, व्हाट इज क्यूबीआई सर? कैन यू? हाँ, yes, the QBI deduction is a qualifying business income deduction। ओके। हाँ, ठीक है, तो वो कंपनसेट करने के लिए ही है। आपको पता चला ना, जैसे कि 21% बिजनेस का टैक्स रेट है, राइट?
अगर सी कॉप टैक्स पे कर रहा है तो वो 21% पे करेगा, अगर गॉट एस कॉप पे करता तो भी वो 21% पे करता। अब वही इनकम पास होके इंडिविजुअल पे आए, वो इंडिविजुअल पे कर रहा है तो अप टू 40%, राइट। तो ये तो यस। गैप हो गया ना बीच में बहुत ज्यादा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए दे कम अप विद QBI डिडक्शन, वॉट एवर इनकम यू अर्न फ्रॉम द बिजनेस, राइट, whether it is a business income or you receive a dividend or interest from the or you are a partner shareholder in company and you receive interest dividend or something, you have to pay taxes on taxes and you will get a deduction। ठीक है, QBI डिडक्शन आपको मिलेगा, हम उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये टैक्सेबल इनकम आ गया। टैक्सेबल इनकम में इनकम पे सबसे पहले उसके रेट्स के हिसाब से फेडरल इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, राइट। ये फेडरल इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलेगी, वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, उसमें अदर टैक्सेस भी ऐड होंगे, जैसे सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस, मेडिकल टैक्सेस, पेरो टैक्सेस जो हमने पे कर दिए हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने दोनों ने पे किए, लेकिन एम्प्लॉय ने अपना जो पार्ट पे किया उसका डिडक्शन उसको 1040 में मिलेगा, राइट। और देयर इज अ टैक्सेस पेड इंडिया में, जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्सेस का। यूएस में भी है एडवांस टैक्सेस का कॉन्सेप्ट, राइट। वेनेवर आप कोई भी इनकम आप रिसीव कर रहे हैं, राइट, तो आपको पता है कि इतनी इनकम मैं साल में रिसीव करने वाला हूँ, तो कुछ टैक्सेस आप एज ए एस्टिमेटेड टैक्सेस आप पे कर देते हो, तो वो टैक्सेस भी यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और जो नेट अमाउंट आएगा वो टैक्स पेबल होगा। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो टैक्स रिफंड होगा। एनी गाइस यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़े। उर्वेश, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू। आप बोलते रहेगा तो मुझे पता चलेगा कि श्योर मुझे श्योर। क्या बोलना। ओके, सो दिस इज द फॉर्म। ओके, ये है 1040 इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न का फॉर्म। ठीक है, जो कैसा दिखता है, ये ब्लैंक फॉर्म है। ठीक है, और ये सिर्फ 2 पेज का है, इसके पीछे बहुत सारे स्केड्यूल लगते हैं। यूएस टैक्सेशन बहुत इन डिटेल है, राइट। आप कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस या कोई भी डिडक्शन आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसका इन डिटेल स्केड्यूल बनेगा इसके अंदर। ये सिर्फ समरी है 1040 पेज की, राइट। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ क्या है इसमें। ठीक है, ये 1040 फॉर्म है फॉर इंडिविजुअल्स। अगर ये बिजनेस होता तो ये फॉर्म नंबर 1120 या 1120 या 1065 हो जाता। ठीक है, ये 1040 है, ये यूएस सिटीजन के लिए है। अगर आप नॉन रेसिडेंट एलियन होते यूएस के लिए, राइट, उसकी भी कंडीशन हम आगे देखेंगे, अब ये फॉर्म देख लेते हैं। अगर आप एनआर नॉन रेसिडेंट होते तो यहाँ पे 1040 एनआर होता। अगर अगर आप सीनियर सिटीजन है मोर देन 65 ईयर्स तो ये 1040 एसआर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अमेंड कर रहे हैं कोई रिटर्न तो ये 1040 एक्स हो जाएगा। यू कैन अमेंड द 3 इयर्स टैक्स रिटर्न। ठीक है, 3 साल के टैक्स रिटर्न यू कैन अमेंड। तो ये 1040, ये कैलेंडर ईयर 2024 मीन्स जनवरी टू दिसंबर 2024। जनरली वैसे भी इंडिविजुअल में तो ये लोग यही टैक्स फॉलो करते हैं। बिगनिंग 1/1/2024 से एंडिंग है 31 दिसंबर 2024। यहाँ पे नाम आ जाएगा, योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ये यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाएगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर इज लाइक अ पैन कार्ड इन इंडिया, इट इज अ 9 डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि इंडिया में पैन कार्ड है सभी जगह पे, अब तो पैन कार्ड एप्लीकेबल है, राइट। हम बैंक में भी जा रहे हैं तो उसके साथ भी पैन कार्ड कनेक्टेड है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी नंबर इट इज लाइक अ पैन कार्ड। एवरी यूएस सिटीजन हैव टू टेक द सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट। सभी सभी ही यूएस सिटीजन को अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना पड़ता है। इट इज अ 9 डिजिट नंबर and issued by the IRS। Okay, सर पैन कार्ड and नंबर तो 10 डिजिट का होता है ना सर? हाँ, पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर 9 डिजिट का होता है। ओके। EIN नंबर। हाँ, EIN नंबर 10 डिजिट का होता है, और वो एंटिटीज के लिए होता है मेनली। हुआ कॉर्पोरेट्स एंड हुआ 1065, हुआ 1120, जो भी एंटिटीज है वो EIN नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, और जो इंडिविजुअल्स है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई करेंगे।
ओके। उसके लिए भी अलग फॉर्म्स रहता है, ठीक है, वो भी हम ऐसा होगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, इन डिटेल एड्रेस, होम एड्रेस है, उसका सिटी वगैरह है, उसका स्टेट है, उसका जिप कोड है। ठीक है, एंड इफ यू आर फॉरेन सिटीजन देन यू हैव टू फाइल योर एड्रेस हियर। ठीक है, ये 5 उसके फाइलिंग स्टेटस है जो हम इन डिटेल इस लेक्चर में इसके बाद देखने वाले हैं। राइट, अगर आपने कोई डिजिटल असेट वगैरह परचेस किया है, सेल किया है, तो यहाँ पे यस और नो लिखना पड़ेगा। अगर यस लिखा है तो फिर उसका पूरा डिटेल स्केड्यूल यहाँ पे हम नीचे दिखाएंगे उसको। स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अगर आप अपने आप को किसी और के रिटर्न में एज ए डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है कोई हमको, जैसे कि पेरेंट है अपने बच्चों को एज ए डिपेंडेंट क्लेम कर सकता है अपने रिटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो व्यक्ति अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा कि जब उसको कोई उसको अगर रिफंड्स वगैरह कुछ लेना है तो उसके लिए वो अपने आप को एज ए डिपेंडेंट अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, अदरवाइज वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। उसकी पूरी पूरी इनकम उसके पेरेंट्स के टैक्स रिटर्न में टैक्स हो जाएगी। यहाँ पे इफ यू आर ब्लाइंड और इफ यू आर मोर देन 65 year old, if you are born before 1960 जनवरी 2 1960, तो आप 65 साल से ऊपर हो जाएंगे, देन यू आर सीनियर सिटीजन। तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन में प्रोविजन है, आपको एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे डिपेंडेंट्स की डिटेल आएगी, जैसे मैंने बोला कि डिपेंडेंट पेरेंट्स अपने चाइल्ड को भी एज ए डिपेंडेंट ले सकते हैं। पेरेंट्स और पेरेंट्स है, जैसे कि मैं अपने मदर फादर को भी एज ए डिपेंडेंट ले सकता हूँ, इफ बोथ आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो ही उसकी क्या कंडीशन है वो हमें आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उसका रिलेशन दिखाना पड़ेगा, और उसके बेस पे अगर आपको कोई क्रेडिट मिल रही है, आपको सीटीसी मिल रहा है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, या फिर आपको अदर डिपेंडेंट क्रेडिट मिल रहा है, तो यहाँ पे टिक आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और उसका स्केड्यूल नीचे जनरेट हो जाएगा, तो वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ इनकम है ये सब, जैसे मैंने बात की थी कि सबसे पहले हमने देखा था कि ग्रॉस इनकम, तो ग्रॉस इनकम कहाँ पे आएगा, तो ये सब इनकम है, इसका वेजिस है। ठीक है, ये उसका इंटरेस्ट हो गया, इसका डिविडेंड हो गया, इसका रिटायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप ले रहे हो अपने रिटायरमेंट अकाउंट से तो वो भी टैक्सेबल होगा। उसके टैक्सेबिलिटी के रूल्स थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल तो होगा। ये पेंशन एन्युटी है, ये सोशल सिक्योरिटी, वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, इन सब का टोटल मिला के यहाँ पे उसका टोटल इनकम आ जाएगा। फिर यहाँ से कैपिटल गेन, हमने कोई सिक्योरिटीज वगैरह सेल की है और उस पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेल की है जो हम यूज कर रहे थे पर्सनल के लिए और उसको सेल कर दिया है, तो भी उसका गेन हमें पे करना पड़ेगा। भले ही उसका डिडक्शन हमें ना मिला हो, लेकिन अगर वो सेल किया है और उसका गेन हुआ तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। ये फिर अलग 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 स्केड्यूल्स है। ठीक है, स्केड्यूल 1 है, वो भी हम इन डिटेल फिर देखेंगे। यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल इनकम में से एडजस्टमेंट माइनस होगा, और ये है एडजस्टमेंट जो है, ये अब ये सब है, तो ये है अबाउट द लाइन डिडक्शन। राइट, क्योंकि एजीआई से पहले आ रहा है, हमने जो देखा था वो एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद एजीआई आएगा। इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटम डिडक्शन माइनस करेंगे। अगर हम आइटम डिडक्शन चूज कर रहे हैं तो फिर उसका स्केड्यूल ए नीचे जनरेट हो जाएगा इन डिटेल में। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड आइटम डिडक्शन। उसके बाद क्यूबीआईडी माइनस होगा और उसके बाद जो आएगा वो टैक्सेबल इनकम आएगा। ठीक है, और ये टैक्सेबल इनकम पे फिर टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ये फेडरल टैक्सेस कैलकुलेट होगा, उसमें से क्रेडिट्स वगैरह माइनस होंगे, जो भी क्रेडिट्स आ रही है, तो यहाँ पे टोटल टैक्स बनेगा। फिर जैसे हमने बोला था कि हमने टैक्स विथहोल्ड किया है W2, हमें पता था कि भाई इतनी इनकम होने वाली है और हमने इतना टैक्स विथहोल्ड कर दिया है, तो वो यहाँ पे उसको माइनस हो जाएगा। 1099 पे इनकम पे जहाँ पे भी हमने भी टैक्सेस पे किया है तो वो टैक्सेस यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अगर हमने कोई एस्टिमेटेड टैक्सेस पे किए हैं तो वो भी माइनस हो जाएंगे। अगर प्रायर का कोई रिफंड प्रायर प्रायर में अगर हमें ओवर पेमेंट कर दिया है हमने, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हम उसको नेक्स्ट ईयर के एज एन एस्टिमेटेड टैक्सेस रोल ओवर कर सकते हैं या फिर उसका रिफंड ले सकते हैं। अगर हमने रोल ओवर कर दिया है तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्रेडिट्स वगैरह माइनस होके यहाँ पे आएगा टोटल पेमेंट। यहाँ पे पता चलेगा कि हमें टैक्स पे करना है या ओवर पेड कर दिया है। अगर ओवर पेड कर दिया है
और उसमें से कुछ अमाउंट हमको रिफंड चाहिए तो लाइन 35A में आएगा। और तो वो वॉइस लोग बहुत करते स्लो हो गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा लाउड बढ़ा दीजिए। बीच में आ रहा था, अब फिर से एकदम स्लो हो गया है। ऐसा स्लो हो गया है। पे- अगर किसी को फेस हो तो कोई बोलो तो पता चले सर को। हाँ मैं तो भी बोल Sir, यस hello. यस Sir, यस are you using any headphone or Bluetooth device while teaching this lecture? Like, if you are using that, then maybe this issue may be created. नहीं, मैं एक्चुअली ये ऑडियो वॉइस मेरे लैपटॉप का ही है। Okay. सर हो सके तो अब ब्लूटूथ स्पीकर लगा दो, ब्लूटूथ से अच्छा क्लियर वॉइस आएगा। क्योंकि ओके लैपटॉप का वॉइस बहुत कम हो रहा है, बीच में मतलब छूट ही जा रहा है पकड़ के। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और थोड़ा सा स्लो जाइएगा। हाँ हाँ, वो इसीलिए मैंने आपको बीच में पूछा था कि आपको क्या हाँ लग नहीं, रहा है कि तब थोड़ा तब फास्ट सही था। चलाओ। अब थोड़ा ऐसा लगा इसलिए बोल दिया। ओके ओके, तो आप बताइएगा आपको कहाँ तक प्रॉब्लम है तो वहीं से नहीं वापस नहीं करते नहीं, हैं। प्रॉब्लम नहीं है, बराबर मुझे समझ में तो मतलब आ रहा है। बट हम्म। थोड़ा स्लो ऐसा, बहुत ज्यादा हाँ, नहीं थोड़ा। आई नो कि एज ए मतलब थोड़ा पॉज लेके पर्सन, वगैरह। हाँ वो नहीं पहुंच लेंगे बीच में, क्योंकि हाँ। क्या है कि अगर फ्रेशर है ना तो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग जरूर हो जाएगा आपके लिए। बट आप ध्यान से नो देखेंगे। सर, आई एम नॉट फ्रेशर एक्चुअली, आई हैव 3 months ऑफ एक्सपीरियंस एट Virtisa CPA। ओके ओके, थैंक यू। जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाउ इज इट ओके? यस सर। मेरे अब ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है, मतलब 5-7 मिनट अच्छी आएगी, उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा लैग होके डाउन हो जाएगी, ऐसा हो रहा है कंटिन्यूस। हाँ, तो बीच बीच में ब्रेक भी होता है। ओके हाँ। हाँ ठीक है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता दीजिएगा। मैं तो सर इमीडिएट बोल देता हूँ। नहीं नहीं, बोल दीजिएगा, तुरंत बोल दीजिएगा। ओके। ओके, तो हम यहाँ पे थे, राइट, कि अगर हमें रिफंड मिल रहा है इस साल, ठीक है, हमने ओवर पेमेंट कर लिया है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरा का पूरा ही उसको एज ए रिफंड ले सकते हैं, या फिर थोड़ा अमाउंट एज ए रिफंड लेंगे और थोड़ा अमाउंट हम नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेटेड टैक्सेस के अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। और रिफंड लेना है तो कौन से अकाउंट से रिफंड लेना है, उसका राउटिंग नंबर इज लाइक IFSI नंबर, ठीक है। राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर, ये चेकिंग अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, ये डिटेल हमें इन फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पे करना है तो भी और रिसीव करना है तो भी, उसमें ऑप्शन आएगा जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि भाई डायरेक्ट डेबिट करना है और डायरेक्ट रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप चूज करते हो तो आपको ये डिटेल देना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो अमाउंट आएगा, अगर आपने लेट फाइलिंग किया है या फिर लेट पेमेंट किया है तो उसका पेनल्टी भी आपको पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द एस्टिमेटेड टैक्स पेनल्टी, राइट। यूएस में एस्टिमेटेड टैक्स पे करना कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो हम इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो ये 1040 पेज 1 और 2 का ओवरव्यू था। आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो बता दीजिए, किसी को भी कुछ भी डाउट है। मेरा आवाज ठीक आ रहा है? किस सर? ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर लगेगा नीचे, यहाँ पे। Hello. यस। Sir, like, I have one doubt. Let's say we are preparing this return. As of now, we are understanding this by IRS form. But let's say we are preparing this return in, let's say, Ultratex software or TaxWise. So, like, in a first page or in a software, if we take this, like, yes, we have a married filing jointly return and we have a dependent, or we want to choose itemized deduction rather than standard deduction. So in a tax software, automatically the schedule will be generated, or we need to add that schedule or any form while preparing this return in tax software. नहीं, देखो उसमें कैसा है
कि जब भी आप टैक्स रिटर्न प्रेप कर रहे हो ना, ठीक है, तो ओके आपको सभी चीज 1 बाय 1 डालनी पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास ओके इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, यस और इंटरेस्ट इनकम आपने डाली और वो अगर $1500 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ही स्केड्यूल बी जनरेट हो जाएगा। ओके ठीक है, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 1500 से कम है और आप चाहते हैं कि स्केड्यूल बी जनरेट हो, फिर आपको उसको फोर्स करना पड़ेगा कि भाई हमें ओके स्केड्यूल बी चाहिए। ओके ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई टैक्स पेयर को पता चले कि आइटम डिडक्शन कितना हो रहा था, उसको दिखाने के ओके लिए आपको आइटम डिडक्शन अगर प्रिंट करवाना है तो उसको फोर्स प्रिंट करना पड़ेगा, वो स्केड्यूल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। Okay. And one more question. हम्म, You mentioned about estimated tax payment and penalty of not paying estimated tax yes, payment. हम्म, So, we need to uh, let's say my employer or I have paid 2026 estimated tax payment in 2025. So while हम्म, preparing 2026 returns, it will be shown on automatically basis on a return, right? right. If you paid, you are talking about income tax or you are talking about the payroll taxes? No, सर I आप am talking about income tax. Income tax, right? Though you have to mention here. So whatever Okay, taxes you paid here, line 25, payments line okay, 25A, यहाँ आपको बताना okay, पड़ेगा कि आपने कितना टैक्सेस फेडरल टैक्स विथहोल्ड किया है W2 में। आप W2 डालोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। okay, आप जब भी W2 की एंट्री करेगा, W2 इज लाइक फॉर्म 16 इन इंडिया। ठीक है, okay, जैसे इंडिया में फॉर्म okay. 16 है वो इन डिटेल होता है। ठीक है, Mm-hmm. अब ऐसे भी W2 इन डिटेल होता है। W2 में दिखाएंगे कितना वेजेस है, कितना सैलरी है। हम जब भी इनकम देखेंगे ना, एनुअल इनकम पर, वेजेस फॉर्म, सॉरी, Okay, यप, एनुअल वेजेस फॉर्म एनुअल है या ना। एनुअल वेजेस फॉर्म, हाँ। जब भी अभी हम इनकम पार्ट देखेंगे ना तो सभी फॉर्म्स हम इन डिटेल देखेंगे। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स okay, भी है जो क्लाइंट प्रोवाइडेड है, वो भी हम देखेंगे। तो हमें पता चलेगा कि वो W2 फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, वो वहाँ पे W2 की एंट्री किया ना तो वो ऑटोमेटिक mm, ही यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, okay, sir. हमें जस्ट सही जगह पे इनपुट करना है। टैक्स सॉफ्टवेयर आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, वो अपने Okay, हिसाब से सब कैलकुलेशन कर लेता है, बस हमें पता चलना चाहिए कैलकुलेशन कैसे हो रहा है और सही हो रहा है कि नहीं, okay, है ना। okay. ओके, Yeah, I'm सो good with एनीवन, it. And thank you, sir. इट इज ओके। So guys, do you have any doubt in for one or two or I move further? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, बाद में भी पूछ सकते हैं, हम तो कवर कर लेंगे, लेकिन अगर अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, तो आगे बढ़े। यस। आज का मेन टॉपिक तो हमने जो कवर करना है वो है फाइलिंग स्टेटस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, सो जैसे इंडिया में एक ही फाइलिंग स्टेटस है, सिंगल। ठीक है, यूएस में 5 फाइलिंग स्टेटस है, सर आवाज सिंगल। नहीं आ रही क्लियर। सर वॉइस ओके, चला गया है। चला गया। ओके 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 ओके, अगेन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, लेक्चर के बाद वापस देखेंगे, इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। आपको जो भी इस लेक्चर में दिक्कत हो हाँ रही है सर, ऑडियो, उसके लिए, ऑडियो की उसके क्वालिटी लिए थोड़ा क्षमा लाउडली प्रार्थना। रखिएगा, हाँ, नहीं नहीं, श्योर, ऑडियो की क्वालिटी एकदम लाउड रखेंगे। क्योंकि उसकी वजह से समझ में भी आ रहा है फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, दिखाई सब दे रहा है पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपरली। ओके ओके ओके, अब तक तो सब कुछ सुनाई दिया ना, कि कुछ ऐसा है जो मुझे रिपीट करना है? ना वो सर वो नहीं है, बस अभी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके स्टिल ओके नहीं आ ओके, रही सर। हाँ। हाँ, जस्ट गिव मी। जब भी चली जाएगी हम तुरंत बोल देंगे, श्योर श्योर, ये बात, ये आप एकदम, आपका काम एकदम बढ़िया है, क्योंकि मुझे अच्छा आफ्टर लगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम देखेंगे तो सेम प्रॉब्लम होगी, हाँ, तो तो उससे उसमें अच्छा बेटर है प्रॉब्लम कि अभी होगा। फिलहाल हम बता दें। हम्म, वॉल्यूम वैसे तो फुल है। अभी कैसे आ रहा है? हेलो, ऐसा स्लो आ रहा हाँ है। अभी आता है सर।
सॉरी। स्लो आ रहा है आपका आवाज। बहुत स्लो हो रहा है सर। अब भी ठीक है? नो सर, स्टिल वैसे का वैसा ही है। देर इज नो एनी चेंजेस। आवाज तो इतना स्लो क्यों आ रहा है? वॉल्यूम एकदम फास्ट। ऑडियो सेटिंग। सर आप Is अपने it okay लैपटॉप now? के वॉइस में से बोल रहे हो? Is it okay now? नो सर। हाँ, क्योंकि क्या हुआ कि लैपटॉप में नहीं आ रहा था तो किया। उसके वॉइस से बोला हूँ मैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद। हेलो, मेरी Yes. कैन एनीवन कंफर्म? यस सर, अच्छा आ रहा है। यस सर। यस सर। आ रही है? हाँ Yes. हाँ, अब थोड़ा ओके, अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना? हाँ। ओके, सो हाँ, तो हम फाइलिंग स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, राइट? Yes. हाँ, सो देर आर 5 filing status in US. One is a single, one is married filing jointly, marriage filing separately, head of household and qualifying surviving spouse. ठीक है, ये कोई भी अगर हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं या फिर फाइल कर रहे हैं तो हमें ये स्टेटस उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर हम सिंगल है या मैरिज फाइलिंग जॉइंटली है या सेपरेटली है या HOH है या फिर QSS है। ठीक है, और ये स्टेटस कब देखा जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर के दिन। अगर आप सिंगल हो तो आपको सिंगल टैक्स रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो आपको MFJ या MFS फाइल करना पड़ेगा। अगर आप HOH हो या फिर आप विडोर हो तो आपको क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस या फिर HOH फाइल करना पड़ेगा। उसकी कंडीशन है जो हम आगे आगे देखते हैं। सो सिंगल टैक्स पेयर का क्या है कि पर्सन जो अनमेरिड है या फिर डाइवोर्स ही है, ठीक है, अगर उसका डाइवोर्स का केस चल रहा है और लीगली सेपरेटेड हो गया है या फिर डाइवोर्स हो गया है एट द एंड ऑफ ईयर दिस ईयर, यानी कि 31 दिसंबर के दिन अगर अनमेरिड है तो वो उसको सिंगल टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे हमने ये टैक्स फॉर्म देखा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटम्स डिडक्शन आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटम्स डिडक्शन है, वो बेस करता है कि आप कौन सा फाइलिंग स्टेटस चूज कर रहे हो। सिंगल के लिए वो अमाउंट अलग है, MFJ के लिए अलग है, MFS के लिए अलग है, HOH के लिए अलग है और QSS के लिए अलग है। सभी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट अलग अलग है। तो आप कौन सा चूज कर रहे हो स्टेटस, वो प्रिसाइजली चूज करना चाहिए। उससे पता चलेगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे नहीं करना है। काफ़ी सारी क्रेडिट्स ऐसी है
जो आपको MFJ में मिलेगी, सिंगल में मिलेगी, लेकिन MFS में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो हम इन डिटेल देखेंगे। तो ये सिंगल स्टेटस के लिए हैं। सिंगल में कोई डाउट है आपको? सर ये रीड करके आप समझा सकते हो तो डाउट बेसिक, सॉरी? ये आप रीड करके समझा सकते हो टेक्स्ट, हाँ हाँ, बिल्कुल। यानी ये आप बेसिकली समझा दोगे सर, आगे अंदर डीप में फिर आगे समझाएंगे तो फिर वो हिसाब से हम क्वेश्चन पूछा आपको। ओके, हाँ हाँ। जैसे कि ये सिंगल स्टेटस है। सिंगल स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि टैक्स पेयर हु इज कंसिडर सिंगल एट द एंटायर ईयर ई वन ऑफ द लास्ट डे, जैसे मैंने बोला कि 31 दिसंबर के दिन अगर हमारा स्टेटस सिंगल है तो हमें सिंगल टैक्स रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा। अगर हमने दिसंबर में शादी कर लिया और मेरा स्टेटस चेंज हो गया तो उस टाइम पे फिर हमें MFJ फाइल करना पड़ेगा, हम सिंगल फाइल नहीं कर सकते। तो हमारे मैरिटल स्टेटस के हिसाब से अगर हम सिंगल हैं तो हमें सिंगल टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने डाइवोर्स ले लिया है, ठीक है, अगर हम लीगली डाइवोर्स्ड है या फिर लीगली सेपरेटेड है और डाइवोर्स डिक्री में मेंशन है कि भाई दे बोथ आर सेपरेट, तो उस टाइम पे हमें सिंगल फाइल करना पड़ेगा। ओके ये फेडरल के रूल के हिसाब से है। ओके ओके। ठीक है, मतलब जो भी दिसंबर के मंथ में उसका जो स्टेटस रहेगा, करंट स्टेटस, उसी के अकॉर्डिंग यस हमें स्टेटस फाइलिंग करनी है। यस, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, यस, लाइक किसी ने शादी की और दिसंबर के एंड में उसने उसका डाइवोर्स हो गया है, देन दे विल फाइल द सिंगल। हाँ, अगर उसका डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया है ओके तो उसको सिंगल फाइल करना पड़ेगा। ओके। और सर केस चल रहा हो और हो ना हो तो फिर? हाँ, अगर केस चल रहा है और आपका डाइवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है तो हाँ। फिर आपको उस तरह तो MFJ ही फाइल करना पड़ेगा, MFJ और MFS फाइल करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। श्योर सर। और इसमें मेरा आवाज ठीक आ रहा है ना? हाँ, आप सही चल रहा है। ओके, तो ये जो मैरिज फाइलिंग जॉइंटली, ये सबसे पॉपुलर फाइलिंग स्टेटस है US में। ठीक है, और IRS भी उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन मैरिज फाइलिंग जॉइंटली को मिल रहा है। मैरिज फाइलिंग जॉइंटली में क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपनी अपनी जो इनकम है वो कंबाइनली एक ही टैक्स रिटर्न में टैक्स करेंगे। ठीक है, और उस पर जो भी टैक्सेस पे करना है, जो भी डिडक्शंस भी मिलना है, वो भी कंबाइनली एक टैक्स रिटर्न में मिल जाएगा। उसको हम मैरिज फाइलिंग जॉइंटली कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा होता है मैरिज फाइलिंग जॉइंटली स्टेटस टिपिकली प्रोवाइड्स मोर टैक्स बेनिफिट देन फाइलिंग अ सेपरेट रिटर्न। सेपरेट रिटर्न में क्या होगा, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों है, दोनों ही सेपरेट सेपरेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन MFJ में क्या होगा कि दोनों ही अपनी खुद की दोनों ही इनकम क्लब करके एक टैक्स रिटर्न में टैक्स करेंगे और जितने भी उनको डिडक्शन मिल रहे हैं वो भी एक ही टैक्स रिटर्न में मिल जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट उसको डिडक्शन भी ज़्यादा दे रहा है, डबल अप दे रहा है सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर ऐसा है कि एक एक टैक्स पेयर चूज़ कर रहा है कि भाई मुझे MFS नहीं चाहिए, MFJ नहीं चाहिए, मुझे सेपरेटली फाइल करना है, तो दूसरे टैक्स पेयर को भी कंपलसरी सेपरेटली फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक टैक्स पेयर MFJ फाइल करेगा, एक टैक्स पेयर MFS फाइल करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो या तो दोनों MFJ फाइल करते हैं या फिर दोनों को ही MFS फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन है कि वो दोनों मैरिड होने चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, साथ में रहते होने चाहिए, लाइव टुगेदर इन कॉमन मैरिज रिकॉग्नाइज इन द स्टेट वेयर दे नाउ रिसाइड्स फॉर द स्टेट वेयर द कॉमन लॉ मैरिज बिगिन। ठीक है, अगर वो अलग भी रह रहे हैं लेकिन उसका जो डाइवोर्स एग्रीमेंट है वो लीगली सेपरेटेड नहीं हुआ है तो फिर वो चूज़ कर सकते हैं कि उसको MFJ फाइल करना है या MFS फाइल करना है। वो सिंगल फाइल नहीं कर सकते, जैसे हमने आगे देखा था। ये जैसे जो आपने पूछा था ना कि सेपरेटेड अंडर इन नॉट फाइनल, कि उसका डाइवोर्स डिग्री फाइनल नहीं हुआ है अभी, वो भी प्रोसेस में है। क्योंकि डाइवोर्स होने में प्रोसेस लगता है, 6 महीने 8 महीने का प्रोसेस लगता है। तो इन बिटवीन टाइम उसका स्टेटस तो मैरिड ही रहेगा, तो उसको MFJ MFS फाइल करना पड़ेगा। और जो भी स्टेटस हम देखेंगे वो एंड ऑफ द ईयर देखेंगे। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है ओके। MFJ के रिगार्डिंग?
नो सर। किसी को भी नहीं? प्रियंका? नो सर। ओके, थैंक यू। जैसे कि ये हमने इलिस्ट्रेशन रखा है, अब पढ़िए इसमें कि एल्वीरा's husband died on November 3, 2024. She has one dependent son who is 8 years old. She did not remarry during the year. What filing status can Elvira use in 2024? कोई बता सकता है? टी, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। एनीवन? सबको यही कहना है या कुछ और करना है आपको? सी। सी। वैसे अभी आपने जैसे वो देखा नहीं है आगे, इसलिए आप सी बोलोगे, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर तो एमएफजे ही है। जिस साल हस्बैंड की डेड हो जाएगी उसी साल तो उसको एमएफजे ही फाइल करना पड़ेगा। उसके दूसरे साल फिर वो 2 साल तक क्वालिफाइंग सर्विंग स्पाउस ले सकते हैं, और उसके बाद अगर क्वालिफाई हुए तो एचओएच, और नहीं हुए तो सिंगल। लेकिन उस साल तो उसको मैरिज फाइलिंग जॉइंटली ही फाइल करना पड़ेगा। ओके। ये जैसे मैरिज फाइलिंग जॉइंटली हुआ, ऐसे ही मैरिज फाइलिंग सेपरेटली। दो टैक्स पेयर अगर चूज कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी अपनी इनकम एक टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं करनी है, वी बोथ फाइल आर सेपरेट टैक्स रिटर्न, ठीक है, दोनों ही अपने अलग अलग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो फिर मैरिज फाइलिंग सेपरेटली उसको चूज करना पड़ेगा। अगर एक टैक्स पेयर ने मैरिज फाइलिंग सेपरेटली चूज किया तो दूसरे टैक्स पेयर को कंपलसरी मैरिज फाइलिंग सेपरेटली ही चूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चूज टू सेपरेट टैक्स रिटर्न, डू नॉट अग्री विथ फाइल जॉइंट रिटर्न, तो वो लोग एमएफएस फाइल करते हैं। इफ वन स्पाउस चूज टू फाइल एमएफएस, द अदर इज फोर्स टू द सेम, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि एक ने एमएफएस फाइल किया तो दूसरा भी एमएफएस फाइल करेगा, ठीक है। सिंस अ जॉइंट रिटर्न मस्ट बी साइंड बाय बोथ स्पाउस, द एमएफएस फाइलिंग स्टेटस मीन्स टू स्पाउस रिपोर्ट देयर ओन इनकम, एक्सेप्शन, क्रेडिट एंड डिडक्शन ऑन सेपरेट रिटर्न even if one spouse had no income. This filing status may benefit a taxpayer who wants to responsible only for their own tax, or if it result in less tax than filing joint return, ठीक है। एमएफजे में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम क्लब होकर एक रिटर्न में जाएगी, तो अगर इसमें स्पाउस की कोई इनकम नहीं भी रही, ठीक है, तो भी वो एमएफजे फाइल करेगा, ठीक है। और अगर उस रिटर्न में कुछ भी ऑडिट में आया, ठीक है, तो बोथ आर जॉइंट एंड सेवरली लाइबल। आईआरएस किसी को भी बुला सकता है, हस्बैंड को भी बुला सकता है, वाइफ को भी बुला सकता है। अगर वाइफ की इनकम नहीं है तो भी उसको भी वो भी रिस्पॉन्सिबल है अगर कुछ पेनल्टी वगैरह हुआ तो। लेकिन एमएफएस में ऐसा नहीं है। एमएफएस टैक्स रिटर्न एक बगैर फाइल कर लिया, हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ही अलग अलग फाइल किया, ठीक है, तो फिर वो अपने रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाइफ ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया, हस्बैंड ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया, और हस्बैंड के टैक्स रिटर्न में कोई ऑडिट आया तो वाइफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिटर्न, ठीक है, अगर दोनों ही एमएफएस फाइल कर रहे हैं तो। लेकिन एमएफजे फाइल कर रहे हैं तो फिर बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, ठीक है, दोनों को दोनों ही इक्वल लाइबल है। आईआरएस किसी को भी बुला सकता है, ठीक है। और टिपिकली अ मैरिड कपल विल पे मोर टैक्स ऑन अ कंबाइंड बेसिस व्हेन फाइलिंग सेपरेटली देन दे वुड फाइल जॉइंटली। अगर दोनों में से जो कोई भी पहले देखेंगे कि भाई मैरिज फाइलिंग सेपरेटली फाइल करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या मैरिज फाइलिंग जॉइंटली फाइल करने से ज़्यादा फायदा हो रहा है, फिर चूज़ करते हैं कि भाई उनको एमएफजे फाइल करना है, एमएफएस फाइल करना है। लेकिन आईआरएस हमेशा ही एमएफजे को प्रमोट करता है, इसलिए उसने स्टैंडर्ड रिएक्शन भी मैरिज फाइलिंग जॉइंटली में ज़्यादा दिया हुआ है। और टैक्सेस फाइल करने की जो लिमिटेशन है वो एमएफएस में सिर्फ $5 है। अगर आप सेपरेटली रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपको $5 से ज़्यादा इनकम है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। और अगर आप मैरिज फाइलिंग जॉइंटली हो तो फिर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन से अगर कम इनकम हो रही है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। इसलिए जो एमएफएस जो है वो लीस्ट एडवांटेजियस है। जितने भी स्टेटस है उसमें से सबसे कम बेनिफिट अगर किसी स्टेटस को मिल रहा है तो एमएफएस है। गाइस, डू यू हैव एनी डाउट or is it okay?
Should I move further? Yes. वो ठीक आ रही है अभी? Yes. Got it, sir. ओके, थैंक यू। तो ये एमएफएस के रूल्स हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि टैक्स रेट आर जनरली हायर द सेम लेवल ऑफ टैक्सेबल इनकम देन दोज एप्लीकेबल टू एमएफजे। एमएफजे में जिस हिसाब से टैक्स लग रहे हैं उससे ज़्यादा टैक्स आपको एमएफएस में पे करना पड़ेगा, उसके टैक्स रेट ज़्यादा है। वो इन डिटेल जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि एमएफएस चूज़ करने से कितना टैक्स होगा, एमएफजे चूज़ करने से कितना टैक्स होगा, वो हम इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे टैक्सेस ऐसे काफ़ी सारे क्रेडिट्स ऐसी है जो एमएफजे में मिलेगी। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट एमएफजे में मिलेगी, एमएफएस में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी क्रेडिट्स भी ऐसी है जो एमएफएस में नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे कि कैपिटल गेन लॉस डिडक्शन जो है, यूएस में ऐसा रूल है कि जैसे आपका लॉन्ग टर्म गेन हो गया, वो आप शॉर्ट टर्म के सामने सॉरी लॉन्ग टर्म लॉस है हमारे पास और शॉर्ट टर्म गेन है तो हम एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो और अगर हमारे पास दोनों ही लॉस है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉसेस है, ठीक है, और गेन है ही नहीं, तो हम $3000 तक, अगर हम मैरिज फाइलिंग जॉइंटली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो $3000 तक हम उसको डिडक्शन ले पाएंगे करंट ईयर नेट इनकम के सामने, ठीक है। लेकिन एमएफएस में ये कम होकर $1500 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिट भी एमएफजे में बहुत ज़्यादा है, एमएफएस में सिंगल में जितना है उतना ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट एमएफएस में नहीं मिलेगा, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट एमएफएस में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैरिड टैक्स पेयर समटाइम चूज टू सेपरेट रिटर्न व्हेन वन स्पाउस डज नॉट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर स्पाउस टैक्स ऑब्लिगेशन और बिकॉज फाइलिंग सेपरेट में दे रिजल्ट लोअर टैक्स। जैसे मैंने बोला कि एमएफजे रिटर्न में बोथ था जॉइंट एंड सेवरल लायबल, एमएफएस में ऐसा नहीं है। अगर वाइफ को ऐसा लग रहा है कि भाई उसका जो हस्बैंड है वो इलीगली जैसे कि कमा रहा है, राइट, और उसका रिटर्न हो सकता है कि अंडर स्क्रूटिनाइज आए, तो वो सोच रही है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहती है, तो एमएफएस रिटर्न फाइल करेगी। या फिर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया कि एमएफएस में कम टैक्सेस आ रहा है, एमएफजे में ज़्यादा टैक्सेस आ रहे हैं, तो चूज़ कर सकते हैं बहुत अलग अलग टैक्स रिटर्न फाइल करना, अदरवाइज एमएफजे फाइल करेंगे। Guys, is it okay? Should I move further? So ये एग्जाम्पल है एमएफएस टैक्स रिटर्न का। जोसेफ एंड इंग्रिड आर मैरिड, दे रिसाइड इन हवाई स्टेट, a non-community property state. Ingrid owes 15,000 as a back child support and 5,000 delinquent state income tax. Joseph decided to separate tax return for Ingrid so he can retain both his own federal tax and state refund. Joseph did not have to file any injured spouse form because he did not a joint return with Ingrid. He received both of his separate refund. Ingrid files her own separate return and her federal and state tax refunds are offset in order to pay her delinquent debt. ठीक है, अगर मैरिज फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर रहे हैं तो फिर अगर टैक्स पेयर को कोई रिफंड मिल रहा है तो वो अपने टैक्स रिटर्न में उसको सेटअप करेगा। वाइफ को, स्पाउस को उसके टैक्स रिटर्न में उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर वो एमएफएस चूज़ कर रहे हैं तो, अगर एमएफजे चूज़ कर रहे हैं तो फिर वो उसका सेटअप अपने टैक्स रिटर्न में ले पाएंगे। ठीक है गाइस, आपको पता चला कि यू वांट मी टू ऐड? सर एग्जांपल में कुछ पता नहीं चला, रिपीट। श्योर, ये एग्जांपल ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर एमएफजे चूज कर रहे हैं, ठीक है, यस अगर मैंने मैरिज फाइलिंग सेपरेटली चूज किया है तो हस्बैंड वाइफ दोनों अपना खुद का सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। और अगर इसने लिखा है कि भाई इंग्रिड, जोसेफ एंड इंग्रिड दोनों मैरिड हैं, ठीक है, यूएस स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है। यस अब दोनों ने एमएफएस चूज किया है कि भाई हम मैरिज फाइलिंग सेपरेटली चूज करेंगे, ठीक है। तो जो इंग्रिड जो है उसको 15,000 का चाइल्ड सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है, यस और 5,000 उसकी स्टेट टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम होने वाली है, ठीक है।
तो यस उसका फायदा जोसेफ को नहीं होगा अगर वो सेपरेट टैक्सेशन फाइल कर रहे हैं। तो अगर मैरिज फाइलिंग जॉइंटली फाइल कर दे तो इसका फायदा उसको एमएफजे टैक्स रिटर्न में मिलता, ठीक है। लेकिन अगर बोथ आर सेपरेटली फाइल कर रहे हैं तो दोनों को ही अपने 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 जो टैक्सेस पे किए उसका बेनिफिट अपने खुद के रिटर्न में मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। वो हम आगे जब प्रैक्टिकल सर्विस देखेंगे ना तो आपको इन डिटेल सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। ओके अभी ओके आप थैंक समझने का ट्राई कीजिए, नोट्स बनाइए, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछिए। तो ये तो हमने 3 फाइलिंग स्टेटस अब तक देखे, सिंगल, एमएफएस और एमएफजे। इन तीनों में किसी को डाउट है? सर खाली वन क्वेश्चन है, एमएफजे और एमएफएस में क्या डिफरेंस? एमएफजे और एमएफएस में क्या डिफरेंस है? एमएफजे जो है वो मैरिज फाइलिंग जॉइंटली हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके एक रिटर्न बनाएंगे। यस दोनों मिलके रिटर्न बनाएंगे, यस वो तो हाँ, दोनों दोनों। मिलके एक रिटर्न बनाएंगे। यस दोनों की इनकम जैसे कि वेजिस दोनों को ही मिला, दोनों को ही 50,000 का वेजिस मिला तो 1 लाख का वेजिस एक ही टैक्स रिटर्न में टैक्स कर देंगे। और मैरिज यस फाइलिंग सेपरेटली में अगर दोनों को 50,000 इनकम मिल रही है तो वो दोनों अपने अपने टैक्स रिटर्न में अलग से टैक्स करेंगे। अच्छा अलग अलग पे करें। ओके हाँ, 2 अलग रिटर्न फाइल करेंगे और एक साथ में मिलके एक रिटर्न फाइल करेंगे, वो एमएफजे। अलग अलग फाइल करेंगे वो एमएफएस है, मैरिज फाइलिंग सेपरेटली। ओके सर थैंक यू। ओके, ये है एचओएच, हेड ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। हेड ऑफ हाउस होल्ड के रूल्स क्या है? तो टैक्स पेयर हु क्वालिफाई फॉर फाइल एचओएच विल यूजुअली हैव अ लोअर टैक्स रेट देन अ सिंगल और एमएफएस, ठीक है। जैसे एमएफएस है वो लीस्ट एडवांटेजियस है, वैसे जो एचओएच जो है वो एडवांटेजियस तो है, ठीक है, लेकिन एमएफएस से सिंगल से ज़्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि उसको हायर डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो एचओएच लेकिन एचओएच फाइल सब नहीं कर सकते, उसके रूल्स है, ठीक है। तो रूल्स क्या है? तो टैक्स पेयर मस्ट बी सिंगल, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड और कंसीडर अनमेरिड ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आप एचओएच फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको सिंगल होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर टैक्स पेयर और दूसरा क्या है कि उसके पास डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। हाफ फेयर के लिए डिपेंडेंट उसके साथ रहने चाहिए, और उस डिपेंडेंट का अगर वो 50% से ज़्यादा खर्चा उठा रहे हैं तो ही वो एचओ स्टेटस फाइल कर पाएंगे। डिपेंडेंट कौन है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट में कौन कौन हो गया? टैक्स पेयर मस्ट हैव क्वालिफाइड पर्सन लिविंग इन देयर होम फॉर मोर देन हाफ ईयर। 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई डिपेंडेंट आपके पास रह रहा है और उसका अपकीपिंग चार्ज, उसका रहने का खर्चा अगर वो पे कर रहा है तो ही वो एचओ फाइल कर पाएगा। उसके उसमें टेम्पररी एक्सेप्शन है, अगर कोई उसके पास अगर चाइल्ड है, ठीक है, और वो स्टडी कर रहा है, और स्टडी करने के लिए वो बाहर गया है, वो बोर्डिंग में रह रहा है, लेकिन वो वापस वैकेशन में घर आ रहा है, तो वो एक्सेप्शंस उसका उसका टेम्पररी एब्सेंस माना जाएगा और वो उसको एज ए डिपेंडेंट ले पाएगा। अदरवाइज 6 महीने से कम है तो उसको डिपेंडेंट नहीं ले पाएंगे। तो एचओएच और सिंगल में ये डिफरेंस है। अगर कोई पर्सन के कोई स्पाउस डाइड हो गई है तो उस साल वो एमएफजे फाइल करेगा। उसके 2 साल अगर एचओ क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस की कंडीशंस उसकी फुलफिल हो रही है तो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस फाइल करेगा 2 साल, और उसके बाद अगर एचओएच की ये कंडीशन फाइल हो पा रही है तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज को सिंगल फाइल करना पड़ेगा। और उसको क्या है कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइफ मर गई और उसके बाद 2 साल के बाद अगर वापस उसने रीमैरी कर लिया तो फिर वो एचओएस फाइल नहीं कर पाएगा। उसको मैरिड नहीं करना है, ठीक है, वो सिंगल होना चाहिए, या फिर डाइवोर्स हो गया है तो उसके बाद डिपेंडेंट होना चाहिए। ओके गाइस, एनी डाउट? कैन एनीवन रीड दिस? This divorce became final on October. Anyone? Dharmesh, you want?
चलिए मैं ही बोल दूँगा। सिंगल सर, सॉरी, सिंगल ए। पहले मैं ही बोल दूँगा। Tanya's divorce became final on 38 October 2024. She has a sole, एक सेकंड, she has a sole custody of his two children who live with her entire year. Her children are both under age of 18 and Tanya provides more than half of the cost of bookkeeping of the home. What is filing status should be used? किसने बोला ए सिंगल? यस, Okay. यूएस। Okay. Anyone? Any other answer? HOH. B. Any other? कोई ऐड करना चाहता है उसमें? चलिए मैं आंसर दे देता हूँ। दो, उसका आंसर होगा HOH। ठीक है। अगर डाइवोर्स हो गया है 31 अक्टूबर 2024, उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो स्टेटस है 31 दिसंबर को सिंगल हो गया। ठीक है। लेकिन उसके पास उसके दो चाइल्ड हैं एज ए डिपेंडेंट, राइट, तो वो HOH फाइल कर पाएगी। जैसे हमने आगे देखा कि HOH में क्या है, तो उसके पास क्वालिफाइंग पर्सन जो उसके पास 6 महीने से ज़्यादा रहे, राइट, ये तो पूरे साल रह रहे हैं। ठीक है। और उसका उसका कॉस्ट ऑफ कीपिंग भी वो पे कर रहे हैं। ठीक है। और लीगली डाइवोर्स भी है, उसने रीमैरी भी नहीं किया है, तो HOH के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। ओके। ओके। कौन कौन से एक्सपेंस जो है, जो ऐसा नहीं है कि सभी एक्सपेंस जो पे किए वो सभी कंसिडर हो जाएंगे। ये जो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस जो अगर वो पे कर रहा है तो उसको कीपिंग एक्सपेंस में माना जाएगा। ठीक है। जैसे कि रेंट हो गया, मॉर्गेज इंटरेस्ट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, उसका होम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, रिपेयर्स एंड यूटिलिटीज पे कर रहे हैं, उसने जो फूड खा रहा है वो उसका खर्चा हम दे रहे हैं। ठीक है। ये सब वैलिड एक्सपेंसेस हो गए। वैलिड एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो क्लोथिंग इंक्लूड नहीं होगा, एजुकेशन इंक्लूड नहीं होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं होंगे, वेकेशंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेलफेयर एक्सपेंसेस है, ये सब एक्सपेंसेस है जो वैलिड एक्सपेंस नहीं है। ठीक है। उसके अलावा ये जो एक्सपेंसेस है, अगर ये एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं तो ये सब एक्सपेंस कंसिडर हो जाएंगे उसके वैलिड एक्सपेंसेस में, राइट। और हम HOH स्टेटस जो है उसको चूज कर पाएंगे। गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो बताइएगा। सर आपने अनवैलिड कौन सा बताया एक्सपेंस? जैसे वैलिड तो रेंट, मॉर्गेज, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी वगैरह आपने बताया। हाँ, अनवैलिड एक्सपेंस सर? ये रहा वैलिड एक्सपेंस में क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गया, वैकेशन हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब इनवैलिड एक्सपेंस है। ठीक है। एक्सपेंस पे तो कर सकता है, लेकिन फिर वो उसका जो क्राइटेरिया जो है, ठीक है, कि भी वो जो एक्सपेंसेस जो है, ये जो कीपिंग एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ कीपिंग एक्सपेंसेस, उसमें वो कंसिडर नहीं होंगे। उसमें ये एक्सपेंस ही कंसिडर होंगे। रेंट हो गया, मॉर्गेज इंटरेस्ट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर्स हो गया, यूटिलिटीज हो गया, उसने जो खाना खाया उसका कॉस्ट है, ये ही इंक्लूड होंगे इसमें। ये इसके सब ऊपर ही इंक्लूड सर, नहीं है। इसके ऊपर ही टैक्स पे करना रहता है ना, उसके अलावा ये सब इंक्लूड नहीं होता। और नहीं, इस पे टैक्स पे करना नहीं रहता है। उस पर्सन तो को एज ए डिपेंडेंट ले पाएंगे उसको। अच्छा ऐसा है। हम्म। ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है वो सब है, उसका डिडक्शन मिलेगा उसको 1040 टैक्स ये रिटर्न में। ठीक है। वो हम इन डिटेल देखेंगे जब आगे आएगा। लेकिन अभी HOH स्टेटस में ये है कि अगर आप डिपेंडेंट के ये सब एक्सपेंस पे कर रहे हो तभी आप यस। उसको एज ए डिपेंडेंट ले पाओगे। ओके, डिपेंडेंट ले पाएंगे। हम्म। ओके।
Guys, I move further. Hello. यस सर। Yes, sir. ओके, किसी को भी कुछ भी डाउट आप बोल नहीं रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको It पता चल रहा seems है ना good. कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं? Yes. No, I'm getting your points. ओके। सर अगर कोई डाउट हो तो बेफिक्र पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ, आपको कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। यस। ओके, धर्मेश, भूमिका, हरमीत, प्रियंका, यू गाइस हैव नो डाउट राइट? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, हरमीत भाई आपका आवाज़ अभी पहली बार सुना है हमने। ये सौगंध सर रीड करके बता दूंगा जो होगी तो। श्योर 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 श्योर। सो जैसे हमने बात की आगे कि सर पीडीएफ मिलेगी नहीं? सॉरी, पीडीएफ? हाँ हाँ मिलेगी, ये पीपीटी हमने बनाया वो हम प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके। तो सर आगे सर ये आपने रेकॉर्डेड 10 पॉइंट पढ़ा दिए उसके, जैसे कि हमारे को पीडीएफ मिल जाए तो एक बार हम रीड करें तो हमारे को रिमाइंड हो जाए। हाँ हाँ, वो मिल सर जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल क्लासरूम के होगा। पोर्टल में अपलोड हो जाएंगे? हाँ, रेकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। ओके। ओके। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये यहाँ पे एचओएच में बात किया, ठीक है, यस। कि क्वालिफाइंग पर्सन होना चाहिए, राइट? तो क्वालिफाइंग पर्सन कौन कौन हो सकता है उसके लिए ये एक सीट है। देखिए, जैसे कि क्वालिफाइंग पर्सन कौन कौन हो सकता है, तो क्वालिफाइंग पर्सन में दो टाइप के पर्सन हैं, एक तो क्वालिफाइंग चाइल्ड हो गया और एक है क्वालिफाइंग रिलेटिव। ठीक है, क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए क्या है कि वो चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, उसकी एज जो है वो 19 से 24 ईयर 18 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो, ठीक है, अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो 19 to 24 ईयर्स, एंड अगर वो डिसेबल है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इस एज लिमिट में अगर कोई भी बंदा है तो उसको आप उसे क्वालिफाइंग चाइल्ड ले पाओगे। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम है, जैसे उसका अपकमिंग उसका जो खर्चा वगैरह है वो हम पे कर रहे हैं, चार्जेस पे कर रहे हैं, और वो हाफ से ज़्यादा अपने साथ रह रहा है तो उसको एज ए क्वालिफाइंग चाइल्ड ले पाओगे, राइट? जैसे कि क्वालिफाइंग चाइल्ड है, ठीक है, मैरिड चाइल्ड है, उसको भी हम डिपेंडेंट के तरीके से ले पाएंगे। ठीक है, पेरेंट को भी एज ए डिपेंडेंट ले पाएंगे, ये क्वालिफाइंग रिलेटिव को भी डिपेंडेंट ले पाएंगे, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है वो हम आगे देखते हैं। और क्वालिफाइंग पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा, चाइल्ड होगा, स्टेप चाइल्ड हो गया, सिबलिंग्स हो गया, स्टेप सिबलिंग्स हो गया, डिसेंडेंट हो गया, ये सब को भी हम एज अ क्वालिफाइंग पर्सन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर नेफ और नेफ्यू हो गया, स्टेप ब्रदर्स हो गया, स्टेप सिस्टर्स हो गया, ग्रैंड चाइल्ड होगा, कोई भी पर्सन है वो एज अ क्वालिफाइंग पर्सन हम उसको एज ए डिपेंडेंट ले पाएंगे एच ओ स्टेट फाइल करने के लिए। Qualifying relationship, unrelated individual, even in certain family member may still be considered qualifying relative for dependency purpose but will not be qualifying person for HOS filing status। हो सकता है अगर HOS फाइलिंग स्टेटस में अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है फिर भी आप उसको एज ए डिपेंडेंट तो ले ही पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन एज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो क्वालिफाइंग रिलेटिव के तरीके से वो क्वालिफाई हो जाएगा एज अ डिपेंडेंट और आप एच ओ स्टेटस फाइल कर पाओगे। An example of someone who could a qualified relative but not a qualified person for the head of household filing status are cousins। cousins जो है वो क्वालिफाइंग रिलेटिव नहीं बन सकते, क्वालिफाइंग पर्सन नहीं बन सकते, सॉरी, कजिन्स नहीं बन सकते, बाकी सब, बाकी कौन कौन बन सकता है ये हमने यहाँ पे लिखा, राइट? सर ये सिबलिंग और स्टेप सिबलिंग में पता नहीं चला सर, मैं आपको सॉरी, सिब ये लिखा है ना स्टेप चाइल्ड के बाजू में सिबलिंग और स्टेप सिबलिंग मींस कौन सी सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं?
नहीं सर, वो लास्ट पेज ओपन करो था सर, के पहले वाला। ओके। हाँ, ये लिखा ना, स्टेप चाइल्ड के बाजू में है ना सर, सिबलिंग और स्टेप सिबलिंग, वो हाँ, उसका। स्टेप सिबलिंग क्या है, वो अपने डायरेक्टली रिलेटिव नहीं है, राइट। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसके स्टेप कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि आप स्टेप समझाओ सर। ब्रदर्स होते हैं ना, कि उसके मदर या फादर अलग हो, ठीक है। पहले उसकी अच्छा। मदर थी जिसने जो उसका डाइवोर्स हो गया और वापस से उसने दूसरे पर्सन के साथ मैरी किया, ठीक है। तो उनके यस सर। जो बच्चे हो गए वो स्टेप्स हो गए एक दूसरे के। ओके। वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राइट। वो स्टेप सिबलिंग है, स्टेप ब्रदर्स है। ओके सर। ओके। तो ऐसा है कि जो कजिन्स है वो क्वालिफाइंग रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग पर्सन नहीं हो सकते। तो ये हो गया सब एच ओ एच के रिगार्डिंग। आपको एच ओ एच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है नो सर। गाइस? हाँ सर। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, ठीक है। जैसे हमने बात किया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपना स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है, कि सिंगल है। अगर किसी पर्सन का वो विडोअर है, ठीक है, तो उस साल तो वो एमएफजे फाइल करेंगे, लेकिन उसके 2 साल वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस स्टेटस ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस है। उसकी कंडीशंस क्या है, ये सब है। जैसे कि क्वालिफाइड सर्विंग स्पाउस, जिसको क्यूएसएस बोलते हैं, क्यूडब्ल्यू भी बोलते हैं, क्वालिफाइंग विडोवर भी बोलते हैं, ठीक है। इज द लीस्ट कॉमन फाइलिंग स्टेटस। अ क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस रिसीव अ सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन and uses the same tax bracket as the married taxpayer who filed jointly. The tax year of spouse death taxpayer can generally file joint return, ठीक है। जिस साल में टैक्स पेयर की डेथ हो गई उस साल तो उसको एमएफजे ही फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद के साल। फॉर ईच 2 year following the year spouse death, the surviving spouse can use QSS filing status if he has a qualified dependent and does not remarry, ठीक है। उस साल उसका हस्बैंड डाइड हो गया, उस साल वो एमएफजे फाइल करेगी, लेकिन अगर उसके बाद के साल उसने शादी कर ली, इफ़ ही इज़ मैरिड, तो फिर वो क्वालिफाइड विडोअर फाइल नहीं कर पाएगी। अगर उसके पास डिपेंडेंट होगा तो भी नहीं, ठीक है। अगर वो रिमैरिज नहीं कर रही है तो ही वो क्यूएसएस फाइल कर पाएगी, वो भी सिर्फ 2 साल तक, उसके बाद तक नहीं, ठीक है। हाउएवर इफ द सर्वाइविंग स्पाउस रीमैरी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, द डिसीज स्पाउस रिटर्न मस्ट बी फाइल एमएफएस, ठीक है। अगर उसने शादी कर लिया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर उसको एमएफएस या एमएफजे फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवन हैव अ डाउट? तो क्यूएसएस रूल्स क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर द क्यूएसएस फाइलिंग स्टेटस, द टैक्सपेयर नॉर्मली मस्ट नॉट हैव रीमैरी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर उसको शादी नहीं करना है, ठीक है। हैव बीन एलिजिबल टू फाइल जॉइंट रिटर्न फॉर द ईयर फॉर द स्पाउस डाइड। इट डज नॉट मैटर इफ जॉइंट रिटर्न हैज एक्चुअली फाइल्ड। हैव अ क्वालिफाइड चाइल्ड फॉर द ईयर। क्वालिफाइंग चाइल्ड चाहिए ही चाहिए, अगर क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है तो क्यूएसएस फाइल नहीं कर पाएंगे। जबकि एचओएच में क्या था कि कोई सी और पर्सन को भी वो एज ए डिपेंडेंट ले सकते हैं, सिर्फ डिपेंडेंट चाहिए उसके पास, हाफ ईयर से ज़्यादा उसके रहना चाहिए। लेकिन क्यूएसएस में क्या है कि उसके पास क्वालिफाइंग चाइल्ड चाहिए जो पूरे साल उसके साथ रहे, ठीक है। क्वालिफाइंग चाइल्ड कैन बी चाइल्ड, एडोप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, वो स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, फॉस्टर चाइल्ड सिर्फ है जो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी कोई भी चाइल्ड होना चाहिए जो पूरे साल उसके साथ रहे, उसका जो खर्चा है वो स्पाउस जो टैक्स पेयर वो पे करे, तभी वो क्यूएसएस स्टेटस फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं मिलेगा। एंड हैव अ फर्निश ओवर हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग ऑफ द क्वालिफाइंग चाइल्ड फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। पूरे साल के लिए उस चाइल्ड का खर्चा वो उठाएंगे तो ही वो क्यूएसएस स्टेटस फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। गाइस यू हैव अ क्वेश्चन, बोलते रहिएगा बीच बीच में। ये उसके फाइलिंग स्टेटस है, ठीक है। जैसे कि ईयर ऑफ डेथ में एमएफजे और एमएफएस फाइल करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वो क्वालिफाइंग सर्विंग स्पाउस स्टेटस फाइल करेंगे, और थर्ड ईयर वो एचओएच और सिंगल फाइल करेंगे, ठीक है।
तो ये एच और क्यूएसएस में कंफ्यूजन हो जाता है। किसमें? एच और क्यूएसएस, क्वालिफाइंग सर्वांगीण हाँ, स्पाउस मैं आपको और डिफरेंस उसमें। बताऊँ एच ओ क्यू एस एस का। देखिए, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अगर आपकी स्पाउस की डेथ हो गई सेम ईयर में, तो आपको एमएफजे फाइल करना, ये फाइनल है, ठीक है। ओके अब एच और क्यूएसएस में दो बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में ही डिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। अगर आप विडोअर है, ठीक है, विडोअर है और आपके पास डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर वो डिपेंडेंट चाइल्ड है, ठीक है, डिपेंडेंट चाइल्ड चाहिए और पूरे साल आपके साथ रहे हैं, तो ये आप क्यूएसएस फाइल कर पाओगे, ठीक है। ओके अगर आपके पास क्वालिफाइंग चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन वो पूरे साल आपके साथ नहीं रह रहा है, ठीक ओके है, वो पूरे साल, आधे साल, जैसे कि वो आधे साल कहीं और रह रहा है, अपने नाना नानी के यहाँ रह रहा है, ठीक है, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रह रहा है, आधे साल ही आपके पास रह रहा है, तो फिर आप ओके क्यूएसएस फाइल नहीं करा पाओगे, लेकिन आप एचओएच फाइल कर पाओगे, ओके ठीक है। तो जब भी ओके। क्वालिफाइंग चाइल्ड की बात आएगी तब क्यूएसएस मतलब आ जाएगा। क्वालिफाइंग चाइल्ड इफ सर्वाइव द स्पाउस विद द 1 year। 2 इयर्स, हाँ, टू इयर्स पूरे साल आपके साथ पूरे रहना साल। चाहिए, पूरे साल, ओके, ठीक है। और देन वी कैन क्वालिफाइंग फाइल चाइल्ड द में जैसे क्वालिफाइड मैंने एक, सर्वांगीण स्पाउस। सॉरी, अगर 1 साल रहता है उसके साथ हाँ, तो क्यूएसएस तो होगा। क्यूएसएस फाइल कर पाएंगे। उसके पास चाइल्ड है ओके। और 1 साल उसके साथ रह रहा है, उसके सभी खर्चे वो पे कर रहे हैं, तो फिर वो क्यूएसएस बन पाएगा, क्यूएसएस फाइल कर पाएंगे। और लेस देन 1 year रह रहा है देन तो फिर वो एचओएच। एचओएच के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अगर एचओएच के लिए क्वालिफाई हो रहा है तो फिर वो एचओएच स्टेटस फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज उसको सिंगल फाइल करना पड़ेगा, ओके ठीक है। सिर्फ एज क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग चाइल्ड ओके में ओके। एज क्राइटेरिया है। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू था, मेजरली डिफरेंट बिटवीन बोथ में एक ही डिफरेंट है, मोर देन 1 year और यस, वन लेस एंड देन वन हाफ ईयर, मोर देन वन लेस ईयर। देन वन और ईयर और दूसरा क्या है कि एचओएच में चाइल्ड के अलावा भी किसी को डिपेंडेंट रह पाएंगे। मैं अपने पेरेंट को ओके। भी एज ए डिपेंडेंट क्लेम कर पाऊंगा, ठीक है, हाँ एज गॉट इट। डजेंट मैटर। लेकिन हाँ वो क्वालिफाइंग है। चाइल्ड में एज मैटर करता है, ओके ठीक है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और 24 ईयर से कम एज के हो, तो आप क्वालिफाइंग चाइल्ड में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप क्वालिफाइंग और लेकिन आप एज ए रिलेटिव क्वालिफाई कर पाओगे, तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, फिर आप क्यूएचएस फाइल नहीं कर पाओगे, आप एचओएच फाइल कर पाओगे। ओके। मतलब क्यूएसएस में उसका मतलब कोई सन या ऐसा ही कुछ ही होना चाहिए डिपेंडेंट के जो 1 साल उसके साथ रहा हो। यप, ओके 1 साल चाहिए। और सर चाइल्ड की एज कितनी तक होनी चाहिए? और चाइल्ड की एज में 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। इफ़ ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, तो उसकी एज बिलो 70 होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। 18, अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो 18 से 24 साल उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो डिसेबल है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ओके डन अगर सर। वो 35 साल का भी है और अगर वो डिसेबल है, तो उसको एज ए क्वालिफाइंग चाइल्ड, एज ए डिपेंडेंट ले पाओगे, आप क्यूएसएस स्टेटस क्लेम कर पाओगे। लेकिन अगर वो 25 साल का है और फुल टाइम स्टूडेंट भी है, तो भी आप नहीं ले पाओगे, ओके सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन गाइज? नो सर। श्योर गाइज, एवरीवन? हेलो सर। यस। सर मुझे एक जनरल क्वेश्चन है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थियरी पोर्शन, हम जो प्रैक्टिकल 1040 या बाकी सारे रिटर्न है उसका भी हम लेके ना, तो उसमें हम जो टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो उसमें आप उसमें दिखा के सिखाएंगे ना? हाँ, आपको प्रैक्टिकली जैसे भी क्लाइंट्स कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। जैसे कि W2 में रिपोर्ट करना है, तो हम एक्चुअल W2 लेके अब आएंगे, आपको दिखाएंगे कि W2 ऐसे होता है, ठीक है, उसका कैलकुलेशंस कैसे है, उसको कहाँ पे एंटर करना है और उसका आउटपुट कैसे आएगा, वो सब आपको दिखाएंगे। तो ऐसे पूरे 1040 के 2 या 3 रिटर्न आप शो करोगे ना, हाँ हाँ, अलग ज़्यादा अलग भी कर सकते क्राइटेरिया हैं, बेसिस अगर वाले? आपको कुछ डाउट है तो हम ज़्यादा भी अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा पकड़ के चलिए कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, ठीक है, कैसे टैक्स सॉफ्टवेयर में एंटर करना है, कैसे उसका आउटपुट देखना है, ठीक है, कैसे मैच करना है, स्टार्टिंग रिटर्न स्टार्ट करने से पहले क्या क्या देखना है,
ठीक है। हम्म, और वो प्रो कैसे कनेक्ट में उसको दिखाओगे या डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में दिखाओगे? प्रो कनेक्ट में दिखाएंगे। okay, ओके, sir. देयर इज ओनली प्रो कनेक्ट। यप। देखो, मैं आपको बताऊं कि टैक्स सॉफ्टवेयर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई भी टैक्स सॉफ्टवेयर आप विद इन अ वीक सीख जाओगे, ठीक है। हाँ वो तो मेन है चीज़ सर। क्या है, टैक्सेस सीखना मेन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, आउटपुट तो सभी कंसेप्ट में सेम नॉलेज रहेगा। क्लियरिफिकेशन। Yes, it 1040 software फॉर्म, is just a tool. सॉरी। Software is just a tool. Main is the crux, like how we calculate the taxes यस and यस entering the यस यस all यस the actual data into the software. यस। हमें बस ये पता चलना चाहिए कि W2 का आउटपुट कैसा होगा। इनपुट एंट्री तो सभी सॉफ्टवेयर में सेम ही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका इंटरफेस चेंज होगा, ठीक है। W2 यहाँ पे डालने की जगह पे वो उसका पूरे से अलग जगह पे होगा, ठीक है। लेकिन आपका मेन फोकस टैक्स सीखने पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आगे जाके सॉफ्टवेयर तो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपको आउटपुट पता चले, राइट। Okay. Actually, main reason is like I'm pursuing EN clear part one and part two. So these all things basically cover in that. So I am good enough with these things. So that's why I asked this question. ओके। Yes. तो आपका कंसर्न है कि आपको यू वांट टू लर्न प्रैक्टिकल फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू आर वर्किंग विद CPF? Actually, it's just 1 year and 5 months, but I don't have that much of a practical exposure in on returning. ओके, श्योर, वी विल वर्क ऑन इट, ओके। और Okay. हम आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए टैक्स रिटर्न देंगे, ठीक है। उसके Okay. बाद Okay. Sure. हम देखेंगे, हम रिव्यू भी करेंगे कि आपने डेटा एंट्री वगैरह Mm-hmm. सही किया है नहीं किया है। हम लाइव लेक्चर में भी Okay. एक आध डेटा एंट्री आपको दिखाएंगे रिटर्न्स की। उसके बाद आपको करने देंगे, आपको कोई डाउट होगा वो भी हम सॉल्व करेंगे। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू गाइस। तो गाइस, ये फाइलिंग स्टेटस में ये जो PPT है वो मैं रख दूंगा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे Yes. बढ़ेंगे, ठीक है। एंड गाइस, इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग, सो यू आर ओपन गाइस। आप कभी भी कोई भी सजेशन है तो आप दे सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके ओके। ओके सर, अगर ये पॉसिबल होता है तो आप PDF सेंड कर सकते हो तो हम इसकी प्रिंट श्योर निकलवा श्योर, के वो मैं आपको मिल जाएगी PDF। मैं पूछ लेता हूँ, अगर वो PDF व्हाट्सएप ग्रुप में रखना है या फिर यहाँ पे पोर्टल में मिलेगा, ठीक है, आपको डाउनलोड में मिल जाएगा। सर व्हाट्सअप कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हम क्या प्रिंट वगैरह करा लें। हाँ सर, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ठीक है, तो ग्रुप में वैसा होगा तो भेज देंगे, ओके, यस ग्रुप है यस। सर। है ना। हाँ ग्रुप है सर, तो टेक्सास हमारी संघ। बैच का जो ग्रुप है ना उसमें सेंड हाँ, कर उसमें दीजिएगा। भेज हाँ देंगे, बस उसमें भेज इसलिए सेंड देंगे। आज करिए। जो भी PPTs हमने की है ना वो मैं आपको वहीं पे भेज दूंगा। ओके, ओके थैंक डन। यू। डन ओ, सर। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं थैंक यू परसों, सर। ठीक है। आपने नोट्स वगैरह, मैं सब मान रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता चला है, राइट। एंड इफ यू हैव अ डाउट सो वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू ओके ओके। गाइस, ओके, थैंक बाय यू। सर, हैव अ नाइस डे। बाय, हैव अ नाइस Thank डे, you, थैंक sir. It's यू really nice to connect with you. Thank you. गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बाय।